Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. In the previous lessons of class 10th we have done lot of exam practice for German examination class 10th. So in continuation with that, today we have this sample paper of previous year paper class 10th German. You can also get it from CBSE website. So we start preparing for this exam. This is section A, reading section. You know that there are 4 sections. Section A, B, C, D. Section A is basically reading comprehension. You get paragraph and you read the paragraph. This is unseen paragraph and you answer the questions given below. हम देखेंगे किस तरह से पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको समझेंगे और फिर क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। 3 क्वेश्चंस है यहाँ पे और 10 मार्क्स के हैं। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करोगे साथ में। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आई विल आंसर। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। इसमें एक एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एसिस्ट काल्ट ड्राउसन, इट इज कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है। द मेचन सियन जिश वार्म आन सियन टू वियर टू पुट ऑन। द मेचन मीन्स गर्ल्स, गर्ल्स ने वार्म कपड़े पहने हुए, ओके, दे आर ड्रेस्ड अप इन वार्म, okay, on los gates and let's go. But now they're going. Let's go means los gate, let's go. Sigrid fühlt sich schon besser. Sigrid is a name of one of the girls. She is feeling better. क्योंकि warm है, clothes warm है और बाहर winter है तो warm clothes पहने हुए तो she is feeling better. Vielleicht werden die beiden ihre Freundinnen. Maybe the both becomes friends. Maybe vielleicht, मतलब 2 गर्ल्स बात कर रहे हैं आपस में। मेचन लिखा है ना, डी मेचन प्लूरल है, 2 गर्ल्स की बात हो रही है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड वेदर इज कोल्ड, दे हैव पुट ऑन विंटर ड्रेस एंड दे मे बिकम फ्रेंड्स। जी फिंडेड बाइड देयर नेट, शी फाइंड बोथ वेरी नाइस। She finds both very nice. अब here you will see Z means एक third person is also there और third person है वो बता रहा है दोनों girls के बारे में। Because Z here you can see Findet means she finds both very nice means there is another woman she and she finds these both girls very nice. उसको ये दोनों लड़कियां, दोनों girls बहुत nice लग रही है। While is it so lieb sie kümmern because वो एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। So lieb sie kümmern, very lovable, they look after. Kümmern means to look after, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं दोनों girls. The beiden Mädchen erzählen, the both girls are telling, दोनों girls बता रही हैं, wie es so im Internat ist. कैसा इंटरनाट? इंटरनाट मीन्स बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं। तो सब कुछ कैसा है, हॉस्टल में कैसी लाइफ है। Und es hört sich gar nicht so schlimm an. It doesn't sound bad, schlimm, bad, garnished, not at all, unheard, it doesn't sound very bad. सुनने में बहुत अच्छा लगता है। They are talking about their internat, hostel, school hostel. We Sigrid dachte, as one of the girls Sigrid thought about. Duncan dachte, thought. Irgendwie ist es ja auch ein Abenteuer zum ersten Mal ohne die Eltern zu sein. They are living without parents. And she is thinking that how beautiful it is to live without parents. For the first time, zum ersten Mal. It's like an Abenteuer. It's like an adventure. ये उनके लिए एडवेंचर है, पेरेंट्स के बिना हॉस्टल में रह रहे हैं, फर्स्ट टाइम। Aber als sie dann später wieder ganz allein in ihrem Zimmer ist, denkt sie doch an ihre Freunde und ihre Eltern. बट जैसी वो रूम में अकेली होती है, हॉस्टल रूम में अलाइन अकेली होती है, तो दोबारा वो सोचना स्टार्ट कर देती है। Sie denkt, she start thinking about her friends, about her parents. Und was sie wohl gerade tun and what they would be doing. पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे घर पे। Ob sie an ihre Dr. denken,
क्या वो भी अपनी डॉटर के बारे में सोच रहे हैं? तो शी इज थिंकिंग, इट्स ऑल रनिंग इन हर माइंड व्हेन शी इज अलोन इन द हॉस्टल रूम. नया एज इन या अवकिरगन वन फेरियन. ओह, कभी ना कभी तो वेकेशंस आएंगी, फेरियन आएंगी. मीन्स शी इज मिसिंग हर पेरेंट्स एंड शी इज कंसोलिंग हर सेल्फ. अपने आप से बातें कर रही है, चलो कभी ना कभी तो वेकेशंस आएंगी, फेरियन आएंगी और मैं घर जाऊंगी, पेरेंट्स से मिलूंगी. Sigrid zählt. Now she is counting. Countdown. Noch 89 Tage bis zu den Sommerferien. समर वेकेशन में अभी 89 डेज रिमेनिंग है. Noch 89 Tage. स्टिल 89 डेज रिमेनिंग. काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, अभी 89 डेज हो रहे हैं. उसके बाद मैं घर जाऊंगी, पेरेंट्स से मिलूंगी अच्छे से. Now we'll see the first question. Warum ziehen sich die Mädchen warm an? Why the girls have put on warm clothes? क्यों उन्होंने गर्म कपड़े, विंटर के गर्म कपड़े क्यों पहने? सिंपल आंसर, बिकॉज इट इज कोल्ड आउटसाइड. तो कैसे लिखोगे? वारुम का आंसर कैसे लिखते हैं? वाइल के साथ. यहाँ पे वाइल है, ये देख रहे हो, ये वाइल, ये आपको यूज करना वाइल, बट वर्ब लास्ट में. तो आप क्या लिखोगे? डी मेडशन ziehen sich warm an while es kalt draußen ist. ईस्ट लास्ट में आएगा, वर्ब लास्ट. लड़कियों ने ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि बाहर ठंड है, बिकॉज इट इज कोल्ड आउटसाइड. सेकेंड, वाज जागन दी बाइडन मेंशन व्हाट बोथ द गर्ल्स आर सेइंग. दोनों लड़कियां आपस में क्या बातें कर रही है? ये देखो यहाँ पे आंसर है एटसेलन. ठीक है, जागन और एटसेलन मतलब सेम है, टू टेल. क्या बोल रही है? कि हाउ गुड इट इज टू लिव इन इंटरनेट. It's like an adventure, it's like an adventure for them. फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के बिना रह रहे. तो ये पूरा आंसर है आपको लिखना है यहाँ से. वी एस im Internat ist und es hört gar nicht so schlimm. Irgendwie ist es ja auch ein Abenteuer zum ersten Mal ohne die Eltern zu sein. Sagen die beiden Mädchen. इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हो सेंटेंस. ठीक है, say the both girls कि how beautiful it is to live in the hostel without parents. It's just like an adventure. And third question, was marked Sigrid when she alone in Simmerist? What Sigrid is doing when she is alone in the room? जब वो रूम में अकेले होती है तो क्या कर रही है? वो सोच रही है. ओके, sie denkt noch an ihre Eltern, Freunde. तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रही है कि वो क्या कर रहे होंगे अब घर पे. क्या वो भी अपनी डॉटर के बारे में सोच रहे हैं, पेरेंट्स भी? तो दीज आर द 3 आंसर दैट वी हैव डन. प्रैक्टिस करोगे एक बार और दोबारा, पुरानी प्लेलिस्ट देखोगे, पूरी क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. प्रैक्टिस कर सकते हो और काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे आपके क्लास 10th में. विश यू ऑल गुड लक. बाय बाय, टेक केयर.